Start it. Done. Yes, welcome to the super session which we are going to have between me and my friend Chandan Goel. So my friends, before I start, I would really like to welcome each one of you for watching this session live. We had to start at 3, but since Chandan had to start, we thought that let's start it up 8 minutes before time. Since it's the session on time, we are taking it before time, and we will certainly wrap it up before time as well. Before I start, I would just like to start with asking you 2 questions. And then I would just ask 2 questions from the audience which are very powerful. May I? Gigi, please, Ankur. So I want to ask one thing. Do you really want to crack the formula to manufacture time which creates 2 extra productive months for you in a year? Which means कि 12 महीने की जगह you have 14 months. Imagine, just imagine. Exactly. This would be the power of this session, my friends. So just stay tuned till the end. But before I go on and deep dive into what we are going to do it, I'm going to ask you the second question, which is very extremely important. And that is, do you want to have 5x more laser sharp focus, giving you 3x more freedom? If the answer within you comes yes, my friend, then let me introduce myself. I'm Ankur, and today I have along with me one of my very close friend, Chandan Goel, who is my time mentor, who has taught me how to manufacture time, and he's going to share that formula which will certainly unlock the formula of manufacturing time for you in this session within next 1 hour. It is going to be a power packed session. That's what all I can promise you. And अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है ना कि ये फॉर्मूला अंकुर आपके लिए काम किया, क्या ये हमारे लिए करेगा या नहीं करेगा? So let me tell you one thing. This formula works for everyone. This formula works even if you think that you are not organized, or मतलब ये होता ना कि यार नहीं, मैं तो यार इतनी organized तरीके से कैलेंडर पे नहीं काम करता, या you feel कि I'm too busy at times, then definitely yes, this would certainly work. This would certainly work in these 2 cases. My friend, I would really like to acknowledge first of all each one of you who watching this session live, and also there are thousands of people who watch this session afterward. I would like to acknowledge you as well for taking out your precious time and putting in your effort for your self improvement. Believe you me, you had a choice to Netflix or laze around, but you chose to opt in for this session. Thus, we both will make sure that you get the best value out of your time and effort, since we have time and productivity hacker, so you don't have to worry about your ROI of the time. Right, Chandan? Absolutely, Ankur. And before we dive into the session from Chandan, I would just like to tell the top 3 takeaways. What are going to be the top 3 takeaways, top 2 takeaways, in fact, for you? The first top takeaway is that you will crack the formula to manufacture time, creating 2 more extra months in a single year, my friend. Isn't that powerful? If you find it powerful, type in the comment box powerful, because this is going to be a very powerful for you. 12 महीने की जगह अगर इमेजिन करके देखो, आपके पास 14 महीने हो, तो जो चीजों को आप नहीं कर रहे, या जो चीजों को आप बहुत लंबे अरसे से करना चाहते हो, तो आप वो नहीं करोगे, 100% करोगे, बट क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज कहीं ना कहीं हम सब स्टक रहते हैं किस सोच के या क्या बोल के, क्या नहीं है हमारे पास? पैसा है, सब कुछ है, टाइम नहीं है ना? तो अगर वो आप चाहते हो ना, तो 100% टाइप जरूर करना, क्या? फ्रीडम। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉप टेक अवे है कि जो एक ऐसे डिस्ट्रैक्शन भरे वर्ल्ड के अंदर अगर इमेजिन करके देखो, आपका फोकस जो लेजर शार्प हो जाए, जो आपको 3x फ्रीडम दे, तो बहुत पावरफुल होगा ही नहीं होगा?
अगर लगता है कि पावरफुल होगा तो टाइप करो पावरफुल, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टेकअवेज हैं, मेरी लाइफ में मैसिव मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं। और अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ 1 मिनट लेते हुए सिर्फ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अपने मेंटोर को, अपने खास दोस्त को, जिन्होंने मुझे टाइम और प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत बहुत सिंपल तरीके से, बिल्कुल डाइजेस्टिल, रेडी टू डाइजेस्ट टूल्स, हैक्स दिए हैं। एंड आई एम गोइंग टू, इट्स अ honor and a privilege to have Chandan Goel over on this live session. And believe you me, Chandan coaches entrepreneurs and professionals to move forward, to move past their performance roadblocks to have more productive professional lives and absolutely fulfilling personal lives as well. Yes, he is a professional chartered accountant and a co-founder of Blue Consulting Private Limited. During the professional journey of his 18 years, he witnessed, a lot of people's struggle with time and learned from life experiences, and he developed a framework called ISD framework. And it's going to be powerful. He's going to share that framework with each one of you guys. It's going to be very, very powerful. To how to manufacture the time and propel the productivity. Yes, he applied his learnings to grow his company from 2 people, yes, just 2 people, to a power pack, a powerhouse with over 100 plus team members in only and only 2 years, of my friend. 2 years, just couple of years, and that's it. He was able to achieve all that within 2 years, just using the same principles, same formula, what he's going to share with you, which is going to give you massive, massive results in your life. Now, he is empowering entrepreneurs, and he's absolutely on a mission to that, and professionals to come out of just one thing that is called time poverty. जो हम कहते हैं ना, time नहीं है, he's on a mission for that, to get you out of the time poverty and let you achieve the unparalleled success and gain absolute abundance of time in your life. Chandan's book on how to manufacture time is now Amazon's #1 bestseller. It's an honor and a privilege to have Chandan, along with me, for each one of you, giving us his golden nuggets and his golden experience. All those of you who don't know me, just a quick one-liner for me. I'm Ankur, an entrepreneur, author, and a coach, and an inventor of Nano Video Framework. And over to Chandan Bhai for taking us through this journey of how to manufacture time. It's going to be a fantastic journey. I'm very clear, Chandan. I can feel that. Over to you now. So thank you so much, Ankur, for a lovely introduction, which I shared with you. And it's an honor and privilege to be on live with you on the Facebook. So सबसे पहले हम सेशन शुरू करने से पहले मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो स्टोरी ये है कि कुछ महीनों पुरानी बात है, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था. So that time I am sitting with a college friend at Starbucks Noida Garden Galleria. और जिस फ्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, this guy works in India's biggest law firm and he earns in 8-digit salary. और मैं उससे जब बात कर रहा हूँ, मैं उससे एक सवाल पूछता हूँ और उसका पूरा फेस ब्लैंक हो रहा है और इतना अनकंफर्टेबल हो रहा है. और आप जानते हैं मैंने उससे क्या सवाल पूछा? एक सिंपल मैंने उससे सवाल पूछा कि मैं मतलब भाई घर कितने बजे पहुंचता है? एंड उसने 5-10 सेकंड तक एकदम नंब हो गया, जैसे कुछ बोल ही नहीं पा रहा हो वो. और उसके बाद उसने अपना कंपोजर रीगेन किया. उसने कहा, चंदन, मैं आज की डेट में इतनी सैलरी कमा रहा हूं जो मैंने कभी सोची नहीं थी जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 12-13 साल पहले, 15 साल पहले. लेकिन आज की डेट में मेरे पास छोटे 2 बच्चे हैं घर पे. लेकिन जब मैं सोचता हूँ, लुक बैक करता हूँ, ना मेरे पास अपने लिए टाइम है और ना मेरी फैमिली के लिए टाइम है. ऐसा लग रहा है कि मैं एक विशियस सर्कल में फंस गया हूँ. और ये केवल मेरे दोस्त का ही मैंने एग्जाम्पल आपसे लिया, बट मैं अपनी लाइफ में जब मैं काम करता हूँ, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई वर्क विद मिड टू लार्ज साइज ऑफ कंपनीज. मैं उनके CXO लेवल लोगों से बात करता हूँ, एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ. जो एक कॉमन थीम जो निकल के आती है ना, वो ये है कि भाई पैसा तो ठीक ठाक कमा लिया, घर भी बना लिया, गाड़ी भी ले ली, सारे गैजेट्स भी है हमारे पास, लेकिन ना एक चीज की बड़ी कमी है यार, टाइम नहीं है. मतलब वो कह रहे हैं कि
पैसा बहुत कमा लिया, टाइम नहीं है। लेकिन कह रहा है किसी तरह से यार टाइम दिला दे, वो पुराने शौक, वो पुराने मेरी जो हॉबीज थी, कह रहे यार वो तो पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसा लगता है कि वो तो उनके बारे में सोचना तो क्राइम हो गया है। और वो चीज मुझे डियर फ्रेंड्स वो इतनी हिट करी। आज से 8-10 साल पहले मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू करा, और फिर लास्ट ईयर मैंने इसको एक बुक फॉर्म में, जब लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप इसके ऊपर बुक क्यों नहीं लिखते, जब आप हमें ये शेयर करते हो और इससे हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो मैंने कहा कि ठीक है, लेट मी कलेक्ट ऑल दीज थिंग्स एंड शेयर इट इन अ बुक फॉर्म। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं कि मैं एक हरियाणा के एक छोटे से शहर से, वो गांव की तरह ही है, महेंद्रगढ़, वहां से बिलोंग करता हूं। और मैं दिल्ली आया था 95 में पढ़ने के लिए, एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज दैट टाइम। और 95 में अगर आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी लेन में थोड़ा सा पीछे जाइए, तो आपको 20-25 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, उस समय सब कुछ मैनुअल था, सब कुछ। अगर आप सोचेंगे तो बैंक से पैसा भी निकालने जाते हो तो आपको एक टोकन मिलता था, फिर वो टोकन आपको 3 जगह ले जाना पड़ता था, करीब करीब आधा घंटा लग जाता था। अंकुर याद है आपको कि जब आप, आई टोटली अग्री। मतलब पापा मुझे बताते हैं कि हमें कॉल करने के लिए वो स्मालका से थे, हम लोग भी हरियाणा से, तो स्मालका से दिल्ली आते थे एक कॉल करने के लिए। मतलब एग्जैक्टली तो इतना टाइम लगता था उस समय। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैं 25 साल पहले मुड़ के देखता हूं, और आज मेरे पास पहले से ज्यादा टाइम। और लोग जब मेरे से पूछते हैं कि यार तू चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इतनी बड़ी टीम है, इतने लोगों के साथ काम करता है, तो टाइम रहता कैसे है? तो मैं उनको यही बोलता हूं कि भाई एक बहुत बड़ा ना पैराडॉक्स है जिंदगी में टाइम से रिलेटेड। और वो पैराडॉक्स ऐसा है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप कहोगे कि हाँ, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास टाइम क्यों नहीं है। तो अगर आप रेडी हो, अंकुर, कैन आई शेयर दैट पैराडॉक्स विद योर ऑडियंस? Absolutely. I mean, it would be an honor for me to have this paradox for my audience, because this is an unbelievable paradox which you're going to share with everyone. मतलब इससे मेरी लाइफ में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आई है जो मैं भी शेयर जरूर करूंगा अगर चंदन भाई टाइम होगा तो। आई विल लव टू शेयर दैट कि किस तरीके से। एंड डेफिनेटली ऑल योर्स। आप बिल्कुल करिए। तो आप ध्यान से सुनिएगा इसको, थोड़ा अपनी स्क्रीन के पास आ जाइए ताकि आपको वो पूरी तरीके से लैंड करे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई स्क्रीन या कुछ मैं लिख के तो आपको बता नहीं सकता, तो मैं आपको बोल के ही बता सकता हूं और आप केवल सुन सकते हैं अभी। ये पैराडॉक्स है, टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट एंड टाइम इज व्हाट वी वेस्ट मोस्ट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुनिएगा। टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट एंड टाइम इज व्हाट वी वेस्ट मोस्ट। मतलब ये है कि सबसे ज्यादा हमें जिंदगी में टाइम ही चाहिए। और मजे की बात ये है, विरोधाभास ये है, पैराडॉक्स ये है कि हम समय ही है जो सबसे ज्यादा खराब करते हैं। तो क्या आप अगर अपनी जिंदगी में इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं? थोड़ा सा अगर आप देखें अपनी जिंदगी में झांक के, हम हमेशा बोलते हैं यार मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, लेकिन हम नेटफ्लिक्स पे लगे हुए होते हैं, दोस्तों से गप्पे मार रहे होते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं काम के लिए, लेकिन 20-25 मिनट व्हाट्सएप में लग जाते हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा चाहिए उसको हम मतलब एकदम ऐसे पानी की तरह बहा रहे होते हैं जिंदगी में? तो इस चीज को अगर आपने केवल इस चीज को एक ब्रेन टैटू की तरह एक दिमाग में आपने फिट कर लिया, तो आप में एक अवेयरनेस आएगी और इमीडिएटली आप अवेयर हो जाओगे कि हाँ यार, बात तो ये बंदा ठीक कह रहा है, अगर मैंने केवल इतनी सी बात मान ली तो ही मेरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये चंदन तो भाई, आई थिंक मुझे तो लग रहा है कि हमें ना गोल्डन वैल्यू जो मिलनी थी ना वो मिल गई। अगर हम सेशन को यही एंड कर देंगे ना, तो मतलब ये अपने आप में इतनी बड़ी मिलियन, जिसको मतलब हम लोग बोलते हैं ना, मतलब $1,000,000 स्टेटमेंट है ये अपने आप में, जो आपने अभी बोली है कि मतलब सिर्फ अगर हम समय की अहमियत को ही समझ लेना, और इस लाइन को अपने, आई थिंक अगर चंदन भाई अगर हम एक पेपर पे प्रिंट करके सामने लगा दें, तो शायद मुझे लगता है कि वो ऑडियंस के लिए क्या क्या लगता है, मतलब वो बार बार इसको, है ना। एब्सोल्युटली, वो आप अगर कहीं पे भी इसको अवेयरनेस में रहने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही आप ये स्टेटमेंट बोलेंगे अपने माइंड को और अपने सामने आंखों को दिखाई देगा, तो आप चाह के भी इस प्रीशियस रिसोर्स को आप वेस्ट नहीं कर पाओगे। नहीं कर। और मैं इस पे मैं आपको एक बिल्टअप करता हूं। जब रिसोर्स की बात आई है कि ये एक ऐसा रिसोर्स है, दोस्तों, एक चीज आप झांकिएगा अपनी जिंदगी में और सोचिएगा, भगवान ने हमें बहुत सारी चीजें दी है, ठीक है, किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास गाड़ी एक है, किसी के पास गाड़ी दो है,
कोई इंटेलिजेंट है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, है ना। और हम भगवान से बड़ी शिकायत भी करते हैं, जी मेरे पास ऐसा है, उसके पास ऐसा है। लेकिन एक चीज आप देखिएगा, गौर करिएगा, जितनी भी चीजें भगवान ने हमें दी है, उसमें से टाइम एक ऐसी चीज है जो दुनिया में 730 करोड़, जो इस ग्लोब पे जितने भी लोग हैं, सबके पास 24 घंटे हैं। मतलब ये एक इतना डेमोक्रेटिक रिसोर्स है जो हम सबको बराबर मात्रा में मिला हुआ है, ना 1 इंच आगे, ना 1 सेकंड पीछे। तो ये चीज को अगर हम समझ लें कि ये एक रिसोर्स है, मतलब एक रिसोर्स की तरह अगर हम देखें, जैसे पैसा हमारे पास एक रिसोर्स है, ऐसे ही अगर हम समय को एक रिसोर्स की तरह देखने लगे, तो आप मुझे ये बताइए, छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, एनर्जी को हमें पता है कि एनर्जी के सोर्स है हमारी लाइफ में। जैसे मान लो तेल है, मतलब डीजल है, पेट्रोल है, एक एनर्जी का सोर्स है जिससे हमारे कारखाने चलते हैं, हमारी गाड़ियां चलती हैं, हमारे घर के अंदर जो जनरेटर है वो चलता है। तो ये एक एनर्जी का सोर्स है। दूसरा एक एनर्जी का सोर्स है जो जिसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी। ठीक है, ये पिछले कुछ 15-20 साल में इसके ऊपर काम हुआ है और बहुत वर्ल्ड ओवर ये बात चल रही है कि भी इसको डेवलप किया जाए। अब मुझे ये बात बताइए कि इसको बोलते हैं सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी को बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स, जो वापस से नया हो सके। और जो डीजल और पेट्रोल है उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। और आप मुझे ये बताइए कि कौन सा रिसोर्स महंगा होता है और कौन सा सस्ता होता है? रिन्यूएबल रिसोर्स महंगा होता है कि नॉन रिन्यूएबल होता है? आप इसको चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, और जो लोग इसको बाद में रिकॉर्डिंग को देखेंगे वो अपने झांक के देख सकते हैं या अपनी जिंदगी में सोच सकते हैं कि भाई कौन सा महंगा है रिसोर्स। अंकुर भाई, आप बताइए कौन सा महंगा है रिसोर्स? एब्सोल्युटली यार, रिन्यूएबल जो है, मतलब बिल्कुल कोई डाउट नहीं है भाई, सोलर इज वेरी एक्सपेंसिव देन देन द डीजल एंड पेट्रोल, एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरा पूछ रहा हूँ अंकुर भाई, मैं दूसरा कह रहा हूँ कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, जिसको हाँ आप दोबारा पैदा नहीं कर सकते, जो हाँ, दोबारा नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है एब्सोल्युटली रिन्यूएबल से। भाई, एब्सोल्युटली। भाई आपका जो सोलर है, सन डेली आएगा फॉर हाँ बिल्कुल। मिलियन ऑफ ईयर्स, है ना। ओ यस यस यस, कॉस्ट, आई मीन मेरे को लगा कि इनिशियल कॉस्ट की बात कर रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, मैं बात ओके। कर रहा हूँ कि भाई वो हमारे पास अबंडेंस में है। जो विंड है यस, वो हमारे पास ब्रिलियंट। अबंडेंस में है। लेकिन ऑयल एंड पेट्रोल, जो ये डीजल और पेट्रोल की बात करें, वो लिमिटेड है, तो वो जल्दी एब्सोल्युटली। खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है। हर कंट्री उसको सेफगार्ड करना चाहती है, उसको ठीक से यूज करना चाहती है। या तो जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स महंगा होता है रिन्यूएबल रिसोर्स से। इसको मैं क्यों बोल रहा हूं? आप ये कहेंगे यार ये क्या बात कर रहे हैं, बात हो रही थी टाइम की और बात करने लग गए एनर्जी की, रिन्यूएबल रिसोर्स की, नॉन रिन्यूएबल की। तो मैं वापस उस कॉन्टेक्स्ट पे आता हूं कि अगर टाइम को आप एक रिसोर्स की तरह देखो, तो आपके हिसाब से टाइम क्या है? रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है? जो जो समय चला गया, चाहे वो 1 सेकंड हो, चाहे वो 1 मिनट हो, चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे आपकी जिंदगी के कुछ साल हो। अगर मान लो आप बिजनेसमैन हैं और उस समय आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे, और आपके छोटे बच्चे हैं और आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए और उनका बचपन निकल गया, तो क्या आज आप वापस जाके उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है। आप वापस नहीं जा सकते, जो समय चला गया वो चला गया। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, जिस रिसोर्स के पीछे आप हम सब लगे हुए हैं दुनिया में, वो रिसोर्स है मनी, वेल्थ, जो कि आपको हैरानी होगी, 100%, 100% रिन्यूएबल है। ऐसे ऐसे किस्से हैं, आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा, उतार चढ़ाव आपने देखा है अपनी लाइफ में, कि कभी आप 10 करोड़ कमा रहे थे, फिर 100 करोड़ पे पहुंच गए, 100 से फिर 80 पे आ गए, कई बार 40 करोड़ भी हो गया, जीरो भी हो गए लोग, लेकिन जीरो से फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे पहुंच गए। इसका मतलब क्या है? ये रिसोर्स रिन्यूएबल है, कभी भी क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन लेकिन जो आपकी जिंदगी का टाइम, जो आपका समय निकल गया, वो निकल गया, वो हमेशा के लिए निकल गया, आप उसको दोबारा नहीं जी सकते। तो आपको ये चीज, जो दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता था, कि समय नॉन रिन्यूएबल है, इसको जुडिशियसली खर्च करें, ये वापस नहीं आएगा। इसको आप, अंकुर भाई, इस चीज को अगर हम देख लेना, केवल अगर अपने आसपास एनवायरनमेंट में, ये एक ऐसा रिसोर्स है जो दोबारा वापस हमें नहीं मिलता, एक बार गया तो गया। और आई थिंक चंदन भाई, ये
कहीं ना कहीं लोगों को लगता है ये बड़ी एक बेसिक बात है कि ये हमें पता है, ब्रेन के अंदर ये आता है कि हाँ, कि यार ठीक है, मुझे पता है कि टाइम वापस नहीं आता है। बट कहीं ना कहीं इसको भी आई थिंक अगर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन सेवर बना लें और प्रोबेबली एक इसका भी प्रिंट आउट निकाल दे कि टाइम इज दी most renewable resource, important most non precious. renewable resource which is not going to come back again once Absolutely, gone। तो आई absolutely. थिंक मुझे लगता है कि वो हमारे ब्रेन में बार बार रिक्रिएट होगा, क्योंकि एक बार जो हम इंफॉर्मेशन सुनते हैं वो हमारे रजिस्टर तो मतलब लैंड तो कर जाती है, बट जी, कई कभी हो जाती है रजिस्टर, कभी नहीं होती है। yeah, और उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने में जैसे आप कहते हैं कि टाइम लगता है। तो आई absolutely. थिंक ब्रेन को भी क्योंकि टाइम चाहिए उसको रजिस्टर करके इम्प्लीमेंट करने तक। तो चंदन भाई वो ये अगर इसको हम बार बार पढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट मतलब आपकी लाइफ में आपने भी ऐसे किया था क्या कभी, या बार डेफिनेटली, बार बार बार? डेफिनेटली। देखो, चीजों को अंकुर ने जो कहा, हमारे सबके तरीके अलग हो सकते हैं। आप, कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल पे लिख के कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग होते हैं सामने बोर्ड होता है वहां लगा देते हैं। इसका मेन कारण जो अंकुर कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है, हमें अपनी लर्निंग्स को, अपनी इंसाइट्स को, अपने गोल्डन नगेट्स को एग्जिस्टेंस में रखना है। द वर्ड वाह, इज एग्जिस्टेंस। तो जैसे ही आपका तरीका अलग हो सकता है दोस्तों एग्जिस्टेंस में रखने का, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, बट आपको एग्जिस्टेंस में रखना है। जब आप एग्जिस्टेंस में रखते हैं तो आपकी अवेयरनेस हमेशा दुरुस्त रहती है और वो गोल्डन नगेट आपके लिए काम करता पावरफुल। आई थिंक चंदन, आई मीन दिस डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज। आई है। मीन ये बड़ा पावरफुल आपने मेरे को जो ना एक हैक दिया है कि एग्जिस्टेंस में रखना बहुत जरूरी है उसको, तो उसको रिफ्रेश करते रहें। कई बार अगर बहुत से नोट्स ऐसे होते हैं जो जिनको हम शायद वो फोल्डर्स में पढ़े हैं, लाइब्रेरी में आपके भी हैं, हमारे बिल्कुल, भी, इतनी ट्रेनिंग्स बिल्कुल, अटेंड करने के बिल्कुल। बाद उनको एक बार उठा के रिक्रिएट कर लें, तो वो एग्जिस्टेंस में रहते हैं और आप अवेयरनेस में आ जाते हो। बहुत अच्छी बिल्कुल, बात, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। और ओवर टू हम, मैं अभी ना, देखिए आपको शायद ये लग रहा होगा कि हम टाइम को मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहे हैं, तो मैं अभी ये थोड़ा सा आपके साथ एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहा हूं, ताकि जब मैं आपको वो टेक्नोलॉजी, वो टूल्स जब मैं आपको शेयर करूं तो आप उसको पूरी तरह से ग्रैब कर पाए, उसको पूरी तरह से ले पाए। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहा हूं। तो इसलिए मुझे अलाउ करें, मैं आपको एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और शेयर करता हूं टाइम से रिलेटेड, जो आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगा और आप उसको एसोसिएट कर पाएंगे। टाइम, देखिए टाइम को हम एसोसिएट कैसे करते हैं। आप देखिएगा, जब आप किसी से पूछोगे भाई कैसा चल रहा है, तो लोग पता क्या कहेंगे, भाई कट रही है। तो मतलब कट रही का मतलब है कि कट रही है, समय कट रहा है, मतलब टाइम को स्पेंड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब जो पैसा होता है, देखिए पैसे को आप दो तरीके से रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फर्ज करिए आप 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं। ठीक है। आई एम श्योर कि आप लोग ज्यादा भी कमाते होंगे, तो इससे मतलब वो मत होइएगा कि मैं 2 ही लाख बोल रहा हूँ। कम कमाने वाले भी होते हैं, ज्यादा भी। मैं एक एवरेज के लिए कह रहा हूँ। आपने माना 2 लाख रुपए। अब आप देखिए कि अगर 2 लाख रुपए आपने कमाए और पूरे महीने आपने उसको खर्च कर दिया, उस 2 लाख रुपए को, तो वर्सेस एक कोई दूसरा बंदा है, दो बंदे लेते हैं, एक राम है और एक श्याम है। राम भी 2 लाख रुपए कमाता है, श्याम भी 2 लाख रुपए कमाता है। अब राम है अपना भाई 20% सेव करके चलने वाला बंदा है, उसको पता है कि आगे कभी जरूरत पड़ सकती है। श्याम कहता है यार जिंदगी आज है, जी लो, कल किसने देखा है। तो उसने 2 लाख का 2 लाख अपना महीने दर महीने खर्च करता चला गया। अब आप मुझे ये बताइए, कल को जब कोरोना जैसी प्रॉब्लम आएगी, लॉकडाउन जैसी प्रॉब्लम आएगी, जब धंधा बिल्कुल जीरो हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल होगी नहीं, तो राम मतलब अपनी जिंदगी ठीक से चला पाएगा कि श्याम? बड़ा इसको सिंपल कमेंट कर सा दो है। जरा, इसको कमेंट कर दो जरा तो चैट इसको कमेंट लिखो, इस पे बताओ कि भाई राम, राम तकलीफ में रहेगा कि श्याम तकलीफ में रहेगा? एग्जैक्टली, बड़ा बड़ा बहुत बड़े ऑब्वियसली, जबरदस्त एग्जांपल्स ऑब्वियसली, दिए आप। क्योंकि श्याम ने कभी भाई जोड़ा नहीं। श्याम ने कहा भैया खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, पैसा खर्च करने की चीज है, खर्च करो। हाथ का मैल है, आज चला गया फिर दोबारा आ जाएगा। लेकिन हम सबको पता है भैया हाथ का मैल नहीं है। अगर पैसे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आगे तकलीफ में रहोगे। तो हम क्या करते हैं, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ पैसा सेव करो, जो कि आपको आपके रेनी डेज में या तकलीफ वाले समय में, बीमारी में, किसी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आपको काम आएगा। ठीक है। इसी तरह से मैं आपको बताता हूं, समय को आपको बिल्कुल ऐसे ही देखना है। आपको ये नहीं बोलना कट रही है, टाइम को काटना नहीं है। अगर आपको समय को आप दो तरीके से देख सकते हो, एज एन एक्सपेंस एंड सेकंड इज इन्वेस्टमेंट।
जैसे पैसे को आप एक्सपेंड करते हो और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करते हो, इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका जो आप सब लोग करते भी होंगे और सब लोग आप वाकिफ भी हैं, तो मैं एक छोटा सा टर्म यूज कर रहा हूं, उसको हम बोलते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सुन के आपके सबके चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आई होगी, और आजकल मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे भी चल रहा है, यो तो किसी का ज्यादा हो गया होगा, किसी का कम हो गया होगा। तो हम सब लोग अपना एक SIP कुछ भी डालते हैं हर महीने कि भाई ये मैं सेव कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे ये है, एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि समय को ऐसा देखना शुरू करिए, अगर 10 घंटे की आपकी वर्किंग है ऑफिस की, तो 1 घंटा या 2 घंटा ऐसा निकालिए जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो। उस समय को फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कीजिए, किसी ऐसे काम में लगाइए जो आपको आने वाले समय में रिटर्न दे। इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न देता है, एक्सपेंस कोई रिटर्न नहीं देता, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होती है, वो खत्म हो जाता है। Wow. This is what you need to look at time like this: spend or expense versus investment. So Ankur, can you relate with this? एब्सोल्युटली चंदन भाई, बल्कि मैं ना इसको चाहूंगा कि अगर आप इसको और एम्पलीफाई करके इसके अंदर, क्योंकि ये बड़ा बड़ा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है ये वाला, जो जो आई थिंक जो पहले दोनों कॉन्सेप्ट थे वो बड़ी जल्दी समझ आ जाने वाले कॉन्सेप्ट थे, और जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, वो आप जो है आपका 100% बहुत मजा भी आ रहा है। और इस कॉन्सेप्ट को ना और मैं डीप डाइव करना चाहूंगा चंदन भाई, कि किस तरीके से इसका कोई अगर एग्जाम्पल में अगर हम इसको और कोरिलेट कर पाए तो और मजा आएगा सुनने में। बिल्कुल। तो इसमें होता क्या है अंकुर कि हमारी जिंदगी में एक हमारे बड़ी अच्छी किताब है, जो सब लोगों ने, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, कि आप सब लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, स्टीफन साहब की है, स्टीफन आर कवी साहब की। उन्होंने बड़ी लेजेंडरी बुक है, मतलब उसमें, है ना। तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ काम होते हैं अर्जेंट और कुछ काम होते हैं इंपॉर्टेंट। ऐसा होता है, कुछ काम होते हैं इंपॉर्टेंट, कुछ काम होते हैं अर्जेंट। अब हम पूरी जिंदगी कहाँ से जीते हैं? अर्जेंसी से जीते हैं, कि भाई जो सामने आ गया उसको कर लेते हैं, जो रिएक्टिव वे में उसको कर लेते हैं। तो जो आपको इन्वेस्ट करने में जो चीजें लगानी है, वो काम है जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आज अर्जेंट नहीं है, लेकिन अगर आप आज नहीं करेंगे तो कल अर्जेंट हो जाएंगे। आज आपको अपनी की कंपनी की वेबसाइट बनानी है जो 6 साल पहले अपडेट की थी, लेकिन आज अपडेट करना मांगती है। आप उस पर समय नहीं लगा रहे क्योंकि काम चल रहा है, लेकिन कल को 1 साल के बाद कोई नया कॉम्पिटिटर आएगा और आपको एकदम मार्केट से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट वाला काम है जिसपे आप डेली 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा जरूर स्पेंड करें। इसी तरह से आप अपनी जिंदगी में कुछ समय, कुछ काम ऐसे निकाल सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट वाले हों, जो फ्यूचर में आपको रिटर्न देंगे। वाओ, दिस वाज फिनोमिनल। आई थिंक चंदन भाई, मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ इस बात से, क्योंकि बहुत से लोग जो इसको शायद लाइव अभी देख रहे होंगे, ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जो हम करना चाहते हैं, बट प्रोबेबली हम ये देख के उसमें डर जाते हैं कि इसमें तो बहुत समय लगेगा, तो हम उसको छोड़ देते हैं, ये सोच के कि चलो अभी बाद में करेंगे, और उसको टाल देते हैं, कि बाद में करेंगे, कि वेबसाइट ही अपनी, मतलब मेरे को अपनी ही एक वेबसाइट, अपनी इकॉस की वेबसाइट नहीं बनानी थी, और मुझे बड़े अच्छे से याद है चंदन भाई कि मैं उसको इग्नोर कर रहा था पिछले 1 साल से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अब पिछले 1 महीने से जब उस पर काम चालू हुआ है, तो जो आपने मुझे टेक्नोलॉजी सिखाई है, उसको मात्र बनाने में सिर्फ मुझे 15 घंटे लगे हैं। और वो किस तरीके से आपने स्प्लिट करके मुझे बताया कि ऐसे ऐसे जो आपसे मैंने गाइडेंस ली, तो मुझे अब वो वेबसाइट पूरी तैयार है, एंड इट इज रेडी टू लॉन्च विद इन नेक्स्ट 1 वीक। सो मैंने एक बात मतलब मैंने उस बात से बहुत अच्छा एग्जांपल्स और एक लर्निंग ली कि जो भी आई थिंक, और आप सभी के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके अर्जेंट टास्क है, जो फायर फाइटिंग वाले टास्क हैं, उनको अगर हम कम करते चले जाएं और डेलीगेट कर दें, तो निश्चित तौर से आपके पास, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, बड़ा छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आज ये मान लीजिए ये मेरी आज का टू डू है, और इसमें सब कुछ टिक हो चुका है कि अब उसमें ये कुछ पेंडिंग ही नहीं है, मतलब जो करने वाला है, तो मैं बिल्कुल फ्री फील कर रहा हूं, और ये सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक हो जाता है। तो अगर आप भी अगर अपने जो भी इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनको अगर डेलीगेट कर दें, तो मुझे, और जो जो इंपॉर्टेंट टास्क के लिए आप कुछ रोज चाहे 1 घंटा निकालने से स्टार्ट करिए, या आधा घंटा भले ही निकालने से स्टार्ट करिए, और फिर बैठ के एक बार लिख लीजिए कौन से ऐसे वो 4% टास्क हैं जो आपको बहुत रिजल्ट्स, 96% रिजल्ट्स दे सकते हैं, और
उन 4% टास्क को इंपॉर्टेंट की तरह अगर आप देखें और उसके ऊपर रोज 1 घंटा इंपॉर्टेंट आवर के नाम से अगर अपने कैलेंडर में फिक्स कर लें कि भाई ये 4 से 5 मुझे रोज एक इंपॉर्टेंट आवर है मेरा और इस इंपॉर्टेंट आवर में मुझे सिर्फ वही इंपॉर्टेंट काम करना है, तो निश्चित तौर से जो चंदन जी बता रहे हैं, मैंने उन प्रिंसिपल्स को क्योंकि यूज किया है, उनकी उससे मेरी प्रोडक्टिविटी मतलब 3x 5x 10x से ज्यादा अधिक हुई है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। तो एक्सपीरियंस करके ही मैं ये बात बोल रहा हूँ, राइट? आई थिंक चंदन चंदन भाई यही आप चाह एब्सोल्युटली रहे हैं। एब्सोल्युटली। और इसमें मैं आपको एक चीज छोटा सा बात और एक बोलना चाहूंगा कि जब हम काम को पोस्टपोन करते हैं, जब हम किसी भी काम को पोस्टपोन करते हैं लंबे समय तक, तो वो काम शुरू में मान लो आधे घंटे लगना था उस काम को, मान लो आपने 2 महीने पहले कोई काम करना था और वो आधा घंटा लगता उस काम को करने में, आप उसको कहा यार इस हफ्ते कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, उसके हफ्ते कर लेंगे। आप एक चीज नोट करिएगा, अभी एकदम अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करने की कोशिश करिएगा जब ये मैं बात बोल रहा हूं। वो काम जो आधे घंटे का था उस समय आपकी नजर में, 2 महीने बाद वो काम 5 घंटे का बन चुका है आपकी नजर में। उसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। जब आपने देखा होगा स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है, जब पहाड़ से, जो बर्फ के पहाड़ होते हैं, वहां से ऊपर से ना इतना इतना बस बर्फ का एक डला चलता है, नीचे नीचे गिरना शुरू करता है, और वो अपने साथ करता करता और बर्फ और बर्फ और बर्फ, और नीचे आके वो इतना बड़ा बन जाता है, रूम से भी बड़े साइज का, कि वो बहुत मुश्किल हो जाता है, उसका जो परसेप्टेबल वैल्यू होती है बहुत हाई हो जाती है। ऐसे ही जो काम हम छोड़ते जाते हैं छोड़ते जाते हैं छोड़ते जाते हैं, वो ऐसा लगने लगता है बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। ऐसा आप बताइए, सही बताइए। और जब आप उस काम को अल्टीमेटली करते हैं, आप कहते हैं यार मतलब इतना बड़ा बना रखा था मैंने अपने दिमाग में। अब अंकुर ने बताया कि 6 महीने से सोच रहे थे ये कि अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है, वेबसाइट बनानी है ई कोस्ट की, जो इनके दो कितना साल समय से लगेगा। 2 साल से 2 साल से सोच रहे थे, नॉट 6 मंथ, 2 साल से सोच रहे थे। और इनको मैंने एक टेक्नोलॉजी इनसे शेयर करी जो ISD फ्रेमवर्क है, जो इसमें से मैं एक टूल में आज आप लोगों से शेयर करूंगा, जिससे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपका जो फोकस है, वो आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, आप कहेंगे मैं वो सेम बंदा नहीं हूं। और अंकुर ने वही टेक्नोलॉजी को यूज करके केवल मात्र 15 घंटे में ई कोस्ट की नई वेबसाइट, ब्रांड न्यू वेबसाइट, जैसा वो चाहते थे वैसी बन गई। और आप कभी देखना हो, आप जाके देख सकते हैं www.ecos.in और .com। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ecos.in ही है, बट उसको ऑलमोस्ट अभी करीबन से व्हाट विद इन अ वीक्स टाइम हम उसको लाइव कर देंगे। अब उसकी ओके, तो वीडियो अभी बनना लाइव स्टार्ट हो नहीं गया है। किया अंकुर ने, तो उसके बाद आप एक वीक के बाद जाके देखिएगा, तो आपको एक नई ई कोस्ट की वेबसाइट नजर आएगी, जो केवल 15 घंटे में, अंकुर जो कि 2 साल से पोस्टपोन कर रहे थे। तो अब हम आगे चलते हैं। जो आपको मैंने अभी आपसे जो शेयर किया, जो 2-3 चीजें जो कॉन्सेप्ट शेयर की, उसके ऊपर एक मैं अब आपसे एक छोटी सी बात बोलता हूँ। हम सबको क्या लगता है, जितने भी हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, चाहे वो किसी कंपनी का CEO हो, या कोई एंटरप्रेन्योर हो, या कोई टीवी कलाकार हो, हमें लगता है यार ये बंदा इतना सक्सेसफुल है तो पक्का ना ये टाइम को बहुत बढ़िया मैनेज करता होगा। आप बताइए, आपके दिमाग में ये बात आती है नहीं आती कि भाई जब भी हम किसी सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं, डिसिप्लिन आदमी को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये बंदा ना टाइम को बहुत बढ़िया मैनेज करता होगा। तो हमें ना टाइम मैनेज करना अगर आ जाए ना, तो बस फिर तो हम ना बवाल मचा देंगे, फिर तो हम जो करना है वो कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये सवाल बिल्कुल गलत है। ये सवाल बिल्कुल गलत है। लोग टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी फैलेसी है, जब आपको पता चलेगा तो आप कहोगे अच्छा ऐसा हो रहा था। टाइम, मेरे दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, टाइम कभी भी मैनेज नहीं किया जा सकता। लोग बोलते हैं ना वक्त रुकता नहीं, वक्त चलता रहता है, वक्त अब किसी के लिए नहीं रुकता। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको लाइफ में टाइम मैनेज नहीं करना। तब आप पूछोगे भाई क्या मैनेज करना है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको अपनी लाइफ में मैनेज करना है। उसका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम स्क्रीन के पास आके अगर आपको ये चीज पता चल गई ना आज, तो आप यहां से पूरी वैल्यू 10x वैल्यू लेके जा रहे हैं। आपको जिंदगी में टाइम मैनेज नहीं करना, आपको मैनेज करना है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, यस। आपको अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन मैनेज करना है, क्योंकि क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्शन मैनेज हो गया तो टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। अगर डिस्ट्रैक्शन मैनेज हो गया तो टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। जैसे हमें हमेशा ना सवाल ठीक पूछना है।
हम हमेशा क्या पूछते हैं, भाई मुझे कोई ना टाइम मैनेजमेंट की टिप दे दो, कोई टाइम मैनेजमेंट की टिप दे दो। अरे भाई सवाल वो है ही नहीं, ये पूछो कि डिस्ट्रैक्शन कैसे कम कर सकता हूँ। टाइम तो जैसे ही डिस्ट्रैक्शन हटेगा वो फ्री हो जाएगी ना जगह। Absolutely. So अब आप बताओ, लोग मेरे से पूछेंगे कि चंद्र भाई आप सुबह ना 4:45 उठ जाते हो, मुझे कोई टिप दो कि सुबह मैं 4:45 कैसे उठूं। तो मैं उनसे पूछता हूं, भाई सवाल गलत है, क्वेश्चन गलत है, ये पूछो रात को जल्दी कैसे सोएं। रात को जल्दी सो जाओगे, सुबह तो अपने आप उठ जाओगे, सुबह उठना प्रॉब्लम नहीं है, रात को जल्दी सोने पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो दोस्तों टाइम को मैनेज मत करो, डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करो। डिस्ट्रैक्शन को मैनेज कर लिया, टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। आपको इतना टाइम मिल जाएगा जिंदगी में, आप कहोगे भैया करूं क्या इस टाइम का, इतने टाइम का। मैं आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट होके एक साल में 6 छुट्टियां लेता हूं, 6 छुट्टियां, मतलब ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट मंथ आई एम ऑन वेकेशन। केवल इस वजह से कि टाइम को मैं मैनेज नहीं करता। मेरी लाइफ में जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं मैं केवल उनको फोकस करता हूं और उनको मैनेज करता हूं, मेरी जिंदगी में टाइम अपने आप निकलता है। तो अगर आपको इससे कुछ लाइट बल्ब कुछ दिमाग में बत्ती जली तो टाइप करिए लाइट बल्ब या LB इन द चैट बॉक्स, जिससे कि बाकी लोग भी जब इस वीडियो को बाद में देखें तो उनको समझ में आए कि कोई एक लाइट बल्ब मोमेंट था, यहाँ पे बहुत से लोगों की बत्ती जली थी। तो अगर आपकी इस चीज पे केवल बत्ती जल गई ना दोस्तों, आज आप कुछ भी मत लेके जाइए इस लाइव सेशन से, केवल ये एक चीज ले लीजिए कि आपको अपनी डिस्ट्रैक्शन मैनेज करनी। अब आप पता क्या कहोगे, आप कहोगे अंकुर अब ये पूछेंगे मुझसे कि भाई आपने ये तो बता दिया कि ठीक है टाइम मैनेज नहीं करना लेकिन डिस्ट्रैक्शन मैनेज करना। अब डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज करें, ये भी तो सवाल है कि हमारा हिसाब किताब अपने पे काबू ही नहीं है, डिस्ट्रैक्शन कैसे मैनेज करें। तो डिस्ट्रैक्शन के लिए मैं आपको एक चीज छोटी सी चीज बताता हूं। देखिए क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन को आप कुछ कर नहीं सकते। डिस्ट्रैक्शन क्या है, एक इमीडिएट हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है किसी चीज से, इसलिए हम करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अवेयरनेस आ जाती है ना कि हम कुछ कर रहे हैं, उस समय हमें अवेयरनेस आ जाए तो हम तुरंत उस काम पे समय लगाना बंद कर देंगे। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब फर्ज करो जो मेरे पीछे आप ये रूम देख रहे हो, अभी तो ये लिट अप है ये रूम, या अंकुर जहां बैठे हैं वहां एक अभी तो लिट अप है ये रूम। अगर इस रूम को पिच डार्क कर दें हम, एब्सोल्युटली पिच डार्क, जहां एक दूसरे की शक्ल भी दिखाई ना दे, और आपको एक काम दिया जाए कि बोले भाई ये जो अंधेरा है ना इसको धकेल दो, इसको बाहर निकाल दो। अब लॉजिकली तो ये अंधेरा बाहर निकालना चाहिए, मतलब कोई चीज, कोई फावड़ी लेके या कोई चीज लेके उसको बाहर धकेलना चाहिए। आप भाई साहब जिंदगी भर लगे रहो, आप खत्म हो जाओगे, अंधेरा खत्म नहीं होगा। लेकिन एक समझदार आदमी क्या कहेगा, भाई अंधेरा मत भगाओ, अंधेरा रहने दो जहां है। एक हल्की सी रोशनी की किरण, एक दिया, एक मोमबत्ती, एक ट्यूबलाइट, कुछ भी जो आपके पास है, जितना है यथासंभव वो ले आओ। रोशनी अपने आप आ जाएगी, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। अंधेरा, ध्यान से सुनिएगा, अंधेरा रोशनी का अभाव है, अंधेरे की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन अवेयरनेस का अभाव है। जैसे ही आपकी अवेयरनेस आती है, डिस्ट्रैक्शन अपने आप दुम दमा के भाग जाता है। डिस्ट्रैक्शन की कोई वजूद नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल आपको अवेयरनेस लेके आनी है अपनी लाइफ में। और अवेयरनेस के बहुत सारे टूल हो सकते हैं, जिसका एक टूल मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगा, जो आपको अगर आपने उसको अप्लाई कर लिया, वो इतना आसान है, इतना सिंपल है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सिंपल थिंग्स आर यूजुअली ओवरलुक्ड इन लाइफ। डू यू अग्री विद दैट? जो सिंपल चीजें होती है ना वो हम ओवरलुक कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि ये तो हमें पता ही है, ये तो कुछ कॉम्प्लिकेट करके बताओ। दैट्स हाउ वी लिव आवर लाइफ। हमें तो कॉम्प्लिकेशन में मजा आता है ना, बट अल्टीमेट हमारी चाह क्या होती है, जो पीस, जो ब्लिस, जो हैप्पीनेस हमें कहां से मिलती है, जब लाइफ सिंप्लीफाई होती है। और हम उसी को फॉलो कर पाते हैं जो सिंप्लीफाइड हो। कॉम्प्लिकेटेड चीज को कोई फॉलो नहीं कर सकता। तो अब हमारे पास कितना समय है अंकुर? Abhi, we have say about 29 more minutes in hand. 29 more minutes. ठीक है, तो फिर we have enough time that way and we have a good interaction also. Yes. If you will have any question on that. तो Absolutely. दोस्तों अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ वो ISD फ्रेमवर्क जो मैंने डेवलप किया है अपने एक्सपीरियंस से, और जो मेरे मास्टर ने, मतलब ये मैं ये नहीं, मैं ये है कि ईगो
नहीं लेना चाहता कि ये मैंने डेवलप किया है, ये मुझे मिला है, और जो मुझे मिला है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। और ये जो फ्रेमवर्क है ISD फ्रेमवर्क, इसमें जो पहला पार्ट है मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि पूरा करने के लिए ऑब्वियसली मुझे पूरा दिन चाहिए, और पूरा दिन अभी जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं आज आपसे पहला फ्रेमवर्क शेयर करूंगा। अगर आपने केवल वो पहला फ्रेमवर्क ले लिया, तो जो दो चीजें आज अंकुर ने आपसे कहा था कि आज के जो दो टेक अवेज हैं, जो दो प्रोमिसेस अंकुर ने किए थे, वन कि आपको जिंदगी में एक साल में 12 महीने नहीं 14 महीने मिलेंगे, वो पूरा होगा। दूसरा, आपका जो फोकस है वो 5x लेजर शार्प हो जाएगा, जिससे कि आपको लाइफ में एटलीस्ट 3x फ्रीडम महसूस करेंगे। तो अगर आप बिल्कुल तैयार हैं उस टूल को लेने के लिए, तो टाइप करिए रेडी इन द चैट बॉक्स। अगर आप इस समय लाइव हैं, सुन रहे हैं हमें, तो आप इस पे रेडी टाइप करिए, सो दैट आई गेट टू नो दैट यू आर रेडी फॉर दैट टूल। क्योंकि मैं अगर आपको दूंगा और आप रेडी नहीं हो, तो आप रिसीव नहीं कर पाओगे। तो जरूरी है हमें किसी भी चीज को रिसीव करने के लिए रेडी होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सामने वाला दे रहा है। लेट मी, हाँ, तो विद योर एनर्जी और आपके जो रेडीनेस है उसके बेस पे अब मैं आपसे शेयर करता हूं। इस टूल का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, इस टूल का नाम है आइडिएशन। आइडिएशन, IDAITION, आइडिएशन। अब ये जो आइडिएशन है आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई जो आइडिएशन बना है वो आइडिया से बना है, कि आपको ये लग रहा होगा अच्छा कुछ आइडिया की बात कर रहा है चंदन, लगता है कि कुछ आइडिया नया आ जाए या उसके लिए बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे बड़े अलग लेवल पे बात कर रहा हूँ। आइडिएशन का मतलब है जो आपको कोई भी परेशानी, कोई भी इशू दिमाग में, अच्छा इससे मैं आपको पहले आइडिएशन को थोड़े समय के लिए 2-4-5 मिनट के लिए पार्क करता हूँ। हम एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करते हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, जब आपके दिमाग में कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल कोई भी इशू अगर आपको बॉदर कर रहा होता है, तो आप कैसा फील करते हैं? मतलब दिमाग में एक हैवीनेस सी होती है, नहीं होती? मतलब आपकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। बहुत से लोग होते हैं जो एंजाइटी में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो मुझे लोगों ने बताया, जब मैंने अपने दोस्तों से बात करी, एंटरप्रेन्योर से बात करी, आपके जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उस समय ना हम बड़ा ना लो फील करते हैं। और दोस्तों एक ध्यान दीजिएगा, आप रिलेट करने की कोशिश करिएगा अपने ऐसे इंस्टेंसेस से। जब भी आपने जिंदगी में लो फील किया, उस समय क्या होता है, आप में विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। आप जो भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हो उसमें से आपका मन नहीं लगता, आप उसको अवॉइड करते हो। या तो आप मूवी देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, बात करते हो, कुछ भी ऐसा काम करते हो और अपने आप को बेटर फील कराने की कोशिश करते हो। तो मैं आपको, और ये आपकी प्रोडक्टिविटी में सबसे बड़ा हिंड्रेंस है कि जो इश्यूज आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, जिससे आप लो फील करते हैं, एंजाइटी होती है या स्ट्रेस होते हैं, तो ये जो टूल है ना आइडिएशन, ये एक ऐसा टूल है, जब भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी इशू आपको बोदर करने लगे ना, आप उसको चुटकियों में यूं सॉल्व कर लो। अगर आपको ये कला मिल जाए, ये आर्ट मिल जाए, ये साइंस मिल जाए कि आप किसी भी इशू को छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, किसी भी कैटेगरी का, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, आपने चुटकी बजाई और इट्स डन, इट्स लाइक डन एंड सेटल। तो हमको अगर ये हम अभी दे दें, ये शेयर कर ले, तो क्या लगता है कि उनकी, मैं आपको बताऊं भाई साहब, आपकी जिंदगी में ना क्रांति आ जाएगी, क्रांति। और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, अभी इस चीज को ना, एक पेन पेपर अगर हाथ के आपके आसपास हो ना, तो उसको ले लो। और ये मैं अभी जो बता रहा हूँ ना आइडिएशन के लिए, इसको ना लिखो। मैं क्यों बोल रहा हूँ लिखने के लिए, ये मुझे आपको पहले बोल देना चाहिए था कि लिखो। दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे ना माइंड के ना दो पार्ट है। एक को हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, ठीक है, और दूसरा है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। तो क्या होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा 10 से 12% हम कॉन्शियस माइंड यूज करते हैं, और 87-88% है हमारा सब कॉन्शियस माइंड, जो कि 4 गुना बड़ा है। और उसमें जो पावर है उसको हम यूज ही नहीं कर पाते। तो बहुत बार आप देखिएगा, हम बचपन से लिखते आ रहे हैं और हमें आज भी लोग बोलते हैं भैया लिख लो। तो मैं आपको एक टर्म दे रहा हूं और मैं आपको उसका रीजन बता रहा हूं वो क्यों होता है। जब आप लिखते हैं तब
तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को टैप करते हैं। और कोई रीजन नहीं है लिखने का। जब हम बोलते हैं लिखने से हमें याद रहता करता, वो एक अलग सेकेंडरी रीजन है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो समवेयर इट हैज अ न्यूरल कनेक्शन विद योर सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए लोग कहते हैं, आपने एक चीज सुनी होगी, ऑलवेज ऑलवेज थिंक ऑन पेपर, ऑलवेज थिंक ऑन पेपर, डोंट थिंक इन चंदन माइंड। भाई, इसमें ना मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि जो बेसिकली जिन्होंने जो फाउंडर है प्राणिक हीलिंग के, मास्टर चोआकॉक्स, उन्होंने उनके ऑब्वियसली सब कोर्सेज करने के बाद एक उनका एक कोर्स है क्रिया शक्ति। तो उस क्रिया मैं मतलब मुझे ये बात का नहीं पता था, व्हेन यू राइट दैट इट क्रिएट्स अ न्यूरल कनेक्शन इन योर सबकॉन्शियस, तो बड़ी एक अच्छी बात है। तो वो क्रिया शक्ति में ना उन्होंने हमें एक येलो कलर की नोटबुक दे रखी है। तो जितने भी प्रोबेबली अरहैटिक योगीज होंगे यहाँ पे, दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट। और वो उन्होंने ना हमें बोल रखा है कि आपको येलो कलर की नोटबुक पे रेड कलर से स्पेसिफिकली अपने विश को मैनिफेस्ट करना और लिखना है। और आई बीन डूइंग इट एवरी डे, और 4 बार लिखना है उसको। तो मैं यही सोच रहा था अभी, अच्छा ये एक रीजन है जिसकी वजह से मास्टर ने हमें ऐसे करवाया है, वेरी एग्जैक्टली। पावरफुली सेड। हाँ, तो ये जो 4 गुना आप सोचिए, आप अपनी 4 गुना लेटेंट पावर को यूज कर पाएंगे। तो अब मैं जो आपको आइडिएशन बता रहा हूँ, वो आइडिएशन में ना बड़ा सिंपल है, और मैं आपको जितनी भी चीजें बता रहा हूँ वो सिंपल बता रहा हूँ, क्योंकि सिंपल चीजें आप यूज कर पाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड चीजें यूज नहीं होती। और मेरा कंपनी के अंदर जो डेजिग्नेशन है, जो मैं कहता हूं मेरा डेजिग्नेशन है, वो है CSO, चीफ सिंप्लीफाइंग ऑफिसर। मैं CEO नहीं हूं, मैं CSO हूं। और आप सबको अपनी जिंदगी के उसमें CSO बनना है, चीफ सिंप्लीफाइंग ऑफिसर। ठीक है, तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, जो आइडिएशन जो करने की जो एनाटॉमी है, जो उसका तरीका है, वो क्या है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके 2 सवाल हैं। आइडिएशन के लिए आपको अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल है, कॉन्शियस माइंड को एड्रेस करता है, पहला सवाल आपके कॉन्शियस माइंड को टैप करेगा। और जो दूसरा सवाल है, वो आपका जो 4 गुना पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड है, उसको टैप करेगा। तो अब हम एक, आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, कोई भी आपके दिमाग में इस समय कोई भी जो इश्यू चल रहा हो, बड़े से बड़ा जो आपको परेशान कर रहा हो, उसको आप सोच लीजिए, उसको आप याद कर लीजिए। और ऑब्वियसली बड़ा इशू चल रहा हो तो उसको याद करने की जरूरत नहीं, वो आपके आसपास वैसे ही घूम रहा होता है दिमाग के। ठीक है, आपने सोच लिया, एक आपने बड़ा इशू सोच लिया कि जो आपको परेशान कर रहा है, उसकी आज छुट्टी कर देंगे हम, ऐसे ऐसे चुटकियों में छुट्टी करेंगे अभी, ठीक है, अगले 5 मिनट में। तो आपने आपने जो सवाल सोच लिया, उसको आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल, आपको अपने आपके कॉन्शियस माइंड से पूछना है पहला सवाल। और सवाल क्या है, इसको बिल्कुल आपको एज इट इज लिखना है, कोई चेंज नहीं करना, कोई चीज नहीं करना आपको, बिल्कुल मतलब इसके अंदर आपको जरा सा भी, इतना सा भी चेंज नहीं करना है उसके एनाटॉमी में। आपको लिखना है, सवाल है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय माइंड रिलेटेड टू डैश 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 दैट। जो भी सवाल चल रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको सवाल लिखना है अभी अपनी नोटबुक पे, व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय माइंड रिलेटेड टू, जो आपका इशू है, आप उसको लिखें। और जैसे ही आप उसको लिखेंगे, आपको जो भी दिमाग में आ रहा है उस इशू से रिलेटेड, आप सब लिखेंगे। अगर आपको डर लग रहा है, आप लिखेंगे मैं डर लग रहा है। आपको लग रहा है कि मुझे इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, वो लिखेंगे। आपको ये लग रहा है कि इससे मेरी नौकरी जा सकती है, वो लिखेंगे। जितना आपके अंदर इमोशंस हैं उस चीज को लेके, या उसके रिलेटेड जितनी भी वरीज हैं, एंजाइटी है, आप उन सब को लिख देंगे। 1 2 5 10 15 20 से ज्यादा नहीं होती यूजुअली। मैंने आज तक इतने लोगों के साथ काम करा, हजारों लोगों के साथ, 20 से ज्यादा कुछ नहीं होती। तो आप अभी 1-1.5 मिनट लेके इसको लिखिए। अभी आपके सामने जो भी सवाल है, जो इशू चल रहा है, उसमें लिखिए, व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय माइंड रिलेटेड टू दैट दैट इशू। उसको आप लिखिए, जो जो आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं, कुछ भी उस इशू से रिलेटेड, उसको पूरा लिख के, इस दिमाग में वो इशू से कुछ भी रिलेटेड होना नहीं चाहिए। जैसे ही आप ये करते हैं, तो आपके कॉन्शियस माइंड की, जैसे CPU की अपनी एक प्रोसेसिंग पावर होती है, ऐसे ही इस कॉन्शियस माइंड की जो प्रोसेसिंग पावर जो आपने ऑक्यूपाई की हुई थी, वो पूरी फ्री हो जाएगी। और आपको पहली बार ये एहसास होगा कि कोई 5-7 किलो, जितने भी किलो का आपका इशू होगा, वो 10 किलो का भी हो सकता है, 20 किलो का भी हो सकता है, 250 ग्राम का भी हो सकता है।
तो उतना वजन आपके यहाँ से एकदम खत्म हो जाएगा। तब आपने कहा चलो जी चंदन जी, ये तो बात आपकी मान ली कि माइंड इससे हल्का हो रहा है, और आप अब मुझे बताइए कि अगर ये नहीं हो रहा तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है ना, ऊपर से गिरोगे तो नीचे ही पहुंचोगे। वो बात अलग है, नीचे पहुंच के ऊपर जा सकते हो, लेकिन एक बार तो नीचे ही आओगे। चाहे आप बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, डिफरेंशिएट नहीं करता। ऐसे ही ये सवाल अगर आपने लिखा है ठीक से, तो आपके दिमाग को ये खाली करेगा ही करेगा, कोई कोई दूसरा तरीका नहीं। अब आपने लिखा, अब दूसरा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जिससे कि आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि आप कह रहे हो भाई प्रॉब्लम तो है, हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन कहां से आएगा। अब मैं आपको बताता हूं। अब आपको आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना दोस्तों, उसमें इतनी पावर है, इतनी पावर है, एक तरह से वो यूनिवर्स का रेप्लिका है। आपके पूरे यूनिवर्स का कुछ 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 पार्ट वहां पे रखा हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा, जब आप उसी इश्यू पे अगर किसी दोस्त को सलाह दे रहे होते हो, आप ऐसी सलाह दे जाते हो, बाद में आप भी कहते हो यार ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, तो दोस्त कहता है वाह यार मजा आ गया, ऐसी तूने ऐसे मेरा प्रॉब्लम सोल्व कर दिया। लेकिन जब अपनी बात आती है ना, तो टाइम टाइम फिश हो जाती है हमारी। हमें कहते हैं यार अब तो हम तो मतलब बिल्कुल ही बेकार हैं। तो मैं आपको ये एक्सेस इसलिए दे रहा हूं कि आप में वही पावर है, वो पावर आपको बस यूज नहीं करनी आती। मैं आपको जैसे जामवंत ने हनुमान को बताया था कि बेटा उड़ सकता है, और तू पहले उड़ता था, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसकी पावर को आप तब टैप करते हो जब दोस्त को सलाह देते हो या दूसरे लोगों को सलाह देते हो। अपने आप को सलाह देनी है, अब हमें अपने आप को सलाह देनी है, और उस सलाह देने का एक फॉर्मेट है, एक तरीका है, और वो भी उतना ही सिंपल है जितना पहला सवाल था। तो आर यू रेडी? अपना पेन और पेपर निकालो और दूसरा सवाल लिखते हैं। अब हम इस इशू को अभी ऐसे 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 धराशायी करते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है दोस्तों, आपको ये लिखना है, अब अपने माइंड को ये बोलना है, हाउ कैन आई डील विद इट पावरफुली। हाउ कैन आई डील विद इट पावरफुली। आप जैसे ये लिखेंगे, अभी आप ये लिखिए, और जो भी आपके दिमाग में, जो भी आपके दिमाग में उससे रिलेटेड आइडियाज आ रहे हैं, उस इश्यू को डील करने के लिए, आप उसको लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। और आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये आइडिया मैं ही अपने आप को दे पा रहा हूं। इतने समय से इस इश्यू ने मुझे दिमाग खराब कर रखा था, और ये छोटी सी चीज थी, और देखो मेरा हो गया है। इसको बोलते हैं एक टेक्निकल टर्म में, कुछ लोग इसको एक टेक्निकल टर्म में बोलते हैं, जो आपने कभी आजकल देखा भी होगा, उसके नाम पे सॉफ्टवेयर्स बन गए हैं। लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं उसको करने के लिए, और आप भी कर सकते हैं उस टूल को यूज। अगर आपको ये करने के बाद उसके ऊपर और इजाफा करना हो, उस टूल का नाम है माइंड मैप। क्या है? माइंड मैप। तो माइंड मैप का मतलब ये होता है कि हमारा दिमाग कभी भी लीनियर नहीं सोचता कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं सोचता दिमाग हमारा। हमारा दिमाग सोचता है 1 88 6 15 25 ऐसे सोचता है। इधर से इधर से इधर से कहीं से भी आ जाते हैं। तो आपको अपने दिमाग की जो नॉन लीनियर पावर है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सोचता है लीनियर, और जो सब कॉन्शियस माइंड है वो सोचता है नॉन लीनियर, और जो रियल पावर है ना दोस्तों, वो है नॉन लीनियर। तो जैसे ही आप उस नॉन लीनियर पावर को एक्सेस करोगे ना, इट विल बी लाइक अ बूम। मतलब आप कहोगे कि मुझे एक ऐसी चीज मिल गई है, मतलब जैसे होता है ना कि अलादीन का चिराग बोलते थे। तो ये जो आइडिएशन है ना दोस्तों, आईएसडी फ्रेमवर्क में मैं इसको बोलता हूं, आइडिएशन इज मदर ऑफ ऑल हैबिट्स। जितनी भी आपने आज तक हैबिट बनाई होगी ना, ये सबकी सबसे ऊपर है। तो आप जैसे ही आइडिएशन में ये 2 सवाल पूछोगे, पहला सवाल कॉन्शियस माइंड का है, दूसरा सवाल सब कॉन्शियस माइंड का है, जो कि नॉन लीनियर सोचता है। पहला सवाल आप पूछेंगे, व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय माइंड रिलेटेड टू द इश्यू विच इज बॉदरिंग यू। दूसरा सवाल अपने सब कॉन्शियस से पूछ रहे हैं, हाउ कैन आई डील विद इट पावरफुली। जैसे ही आप ये लिखेंगे, आपके जितने भी सवाल थे, जितने भी इश्यूज थे, एक एक करके आप ऐसे 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 चुटकी बजा के करते जाइए। ऑब्वियसली करना आपको ही है। ऐसा नहीं है कि आपको जो आइडिया आ गया उसका सोल्यूशन मिल गया, बट उससे पहले तो हमें आइडिया ही नहीं आ रहा था, दिमाग भारी हो रखा था। एटलीस्ट आपको इस चीज से तो निजात मिली, आपकी प्रोडक्टिविटी इससे एटलीस्ट मिनिमम, मैं आपको मिनिमम बोल रहा हूँ, ज्यादा भी होती है लोगों की,
1 से सवा घंटे डेली बेसिस पे आप इतना लाइटन अप फील करोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिसका जो रियल इम्पैक्ट है वो आपका इतना जबरदस्त है, आप कहोगे यार मैं मुझे और कुछ नहीं करना चंदन, बस यही मुझे पूरी जिंदगी करते रहना है, बस इससे मेरा काम। और इनफैक्ट चंदन, व्हाट आई फील कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जैसे मतलब मेरी जब बढ़ी, तो व्हाट आई कुड फील इज मतलब मैं थोड़ा सा, इफ यू अलाउ देन आई वुड लव टू शेयर कि या मेरी लाइफ में से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया. So Chandan, I was trying to become because एक सर्व करने की फीलिंग हमेशा से थी, मतलब या it's been 19 years now, taking training from across so many mentors across the world. और जब भी मुझे याद है, मैंने जब 2001 में जब लैंडमार्क किया था, तो बीकॉम ऑनर्स तब मैं कर रहा था और मेरा ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर चल रहा था. तो जब मैं उन ट्रेनर्स को देखता था और 300 लोगों की लाइफ में 350 जैसे लैंडमार्क में होता है, वो इतनी लोगों की लाइफ में इतनी एम्पावरमेंट करते थे, तो मुझे ऐसा फील होता था कि यार क्या मेरी लाइफ में कभी एक ऐसा दिन आएगा कि जब मैं किसी की लाइफ में एम्पावरमेंट ला पाऊंगा, वैल्यू ऐड कर पाऊंगा, सर्व कर पाऊंगा. बट बिलीव यू मी चंदन भाई, बिजनेस ना इतना स्टक करके रखता था मुझे. दो हर चीज सिस्टम्स अपने, ऐसा नहीं है कि सिस्टम्स वर नॉट देयर, या मतलब सिस्टम्स वर देयर, राइट पीपल वर देयर, एसएपी जैसे, जोहो जैसे प्रॉपर प्रोसेसेस, टूल्स, मैकेनिज्म्स, एवरीथिंग वाज देयर. या स्टिल व्हाट वाज लैकिंग इज कि जो नई चीज मेरे को करनी थी, पिछले 3 4 5 महीने में हुई है, जो नानो पूरा डेवलप हुआ है, वो वो नहीं हो पा रहा था मुझसे, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता था मेरे पैरों को ना किसी ने नीचे से पकड़ के कोई खींच रहा है नीचे से, एब्सोल्युटली और वो खिंचाव की वजह से मैं आगे ऊपर नहीं जा पा रहा था. एंड बिलीव यू मी गाइस, ऑल दोज ऑफ यू हु आर लिसनिंग दिस, मुझे अच्छे से याद है, मैंने जनवरी का टाइम था, आई थिंक इट वाज जनवरी, चंदन भाई, जब हमने 38 बैरक्स में, दिसंबर 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 14 दिसंबर, दिसंबर की दिसंबर बात की है। बात, एग्जैक्टली. दिसंबर की। तो दिसंबर, आई थिंक लास्ट वीक की बात है, और हम लोग कनॉट प्लेस में थे, और चंदन भाई की एक आई थिंक कपल ऑफ आवर्स की वर्कशॉप थी. हाँ और उस 2 घंटे की वर्कशॉप ने मेरी लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया, मतलब कि जो जो चीजें मैं शायद पिछले 20 सालों से करना चाहता था, वो सब चीजें, किताब, मतलब मैं बड़े बड़ा अच्छा फील करता हूँ ये बोलने से, ये बोलता हूँ जब मैं, कि मुझे बड़ा ग्रेटिफिकेशन मिलती है अंदर से, कि मैंने 3 किताबें लिख के आधी कंप्लीट करके पूरी नहीं करी, और आज भी वो पूरी नहीं हुई है. हाँ, बट जो किताब मैंने चंदन भाई के इस आइडिएशन के प्रिंसिपल को लिख के स्टार्ट करी, पहली किताब 10 दिन के अंदर अंदर लिख के एंड तक पब्लिशर तक चली गई, और दूसरी किताब तो 4 दिन में लिखी है चंदन भाई. वाह, वंडरफुल तो वंडरफुल। व्हाट आई एम, और अब तीसरी किताब अब जो मैं लिख रहा हूँ, वो क्योंकि 250 पेज की बुक है, उसमें मैंने मोटा मोटी हिसाब लगाया कि 70 उसके अंदर 70 आवर्स लगेंगे, और उसको उस तरीके से आइडिएशन करके प्लेस कर लिया. या एंड बिलीव यू मी, एवरीथिंग इज हैपनिंग एवरी सिंगल डे, मतलब हर रोज उस पर काम हो रहा है जैसे आपने सिखाया. सो गाइस, मैं जस्ट एक ही बात बोलूंगा, देखो आप बहुत नॉलेज सुनते भी आ रहे हैं, सब नॉलेज टेकर्स हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम दोनों उस बात की, बट नॉलेज को ना आज लेके अगर आपने इम्प्लीमेंट ऐसे गोल्डन नगेट को, बिलीव यू मी, चंदन, ये आई मीन जिस जो इनकी कंपनी है ब्लू कंसल्टिंग, जहां ये सीएफओस को मेंटोर करते हैं, वो मेंटोर उनको मेंटर करते हैं, जहां उनका पैकेजेस क्रोर्स में है, और जो कंपनी खुद मिनिमम 250 करोड़ से लेकर 5-10 हजार करोड़ की कंपनीज के सीएफओस को, सीएक्सओस को मेंटर करते हैं. इट्स एन ऑनर फॉर मी टू हैव हिम, टू गेट हिम लाइव. इट टुक मी अ लॉट ऑफ एफर्ट, कि मैं ये चाहता था सच में कि जो वैल्यू मुझे मिली है ना, वो वैल्यू आपको भी मिले, बट वो वैल्यू ना सिर्फ बस एक स्टेप अवे है, वो है एक्शन. एक्शन टू इम्प्लीमेंट, राइट चंदन भाई? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इट गोज विदाउट सेइंग, बिना इम्प्लीमेंटेशन के एनी नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज अ इल्यूजन, कोई भी नॉलेज आपको जो मिलेगी, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो एक इल्यूजन है. और अंकुर, आज मैं आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड टू विद ऑन दिस लाइव एंड विद योर ऑडियंस.
So at the end, when we complete the conversation, I am having an amazing gift for you, which you are going to love, which you are going to get thrilled. So stay Wow. tuned till we go. Maybe I think next 5 to 10 minutes we still have. 9 minutes. We have 9 more minutes. Yeah, and Ankur, I'm really curious if you could also share, because I thought that अभी जब बात कर रहे थे कि you obviously run 2-3 businesses and you are so young and you are so passionate and you have also launched a lot of things in recent. I have seen you growing leaps and bounds. How do you manage all these things in such a short span of time? Like what's been working for you? If you could share that, I was a little curious about it. Chandan, so the very rightly asked question, and a lot of people do ask me the same question कि अंकुर, how these all things are getting happen, कि आप live भी आ रहे हो रोज, आप sessions भी कर रहे हो, आप businesses भी देख रहे हो, books भी लिख रहे हो, ये इतना सब कुछ, और जो spiritual practices हैं वो भी 2-2.5 घंटे रोज कंज्यूम करते हैं, योगा भी 1-1.5 घंटा कंज्यूम करता है, तो ये सब मैनेज कैसे हो रहा है? सो मैं एक चीज बोलूंगा, मैं ना पहले इस पे बिलीव करता था, वो गोल्डन नगेट चंदन भाई, आई वुड लव टू गिव जो आपने मुझे दिया, कैन आई विद योर परमिशन? Yeah, absolutely. सो मेरे ना सब कुछ पहले इस पे होता था, अब ना इस पे कुछ नहीं होता, इस पे कुछ नहीं होता, सिर्फ जो कुछ काम जो दिमाग में आते हैं ना वो यहाँ लिख के मैं इमीडिएटली डेलीगेट कर देता हूँ, पहली चीज, और सब कुछ मेरे कैलेंडर पे होता है जो चंदन भाई ने मुझे सिखाया है। हर चीज मेरे कैलेंडर पे मार्क्ड होती है, पहली चीज, ये बहुत बड़ा गोल्डन नगेट है, with Chandan bhai's permission, I have shared with you, though ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, बिलीव यू मी गाइस, अगर आप अपने कैलेंडर को मैनेज, क्योंकि टू डू नाम की कोई वस्तु नहीं होती, अगर आप कैलेंडर को मैनेज करना, जब से चंदन जी आपने मुझे सिखाया चंदन भाई, सो आई थिंक माय लाइफ हैज जस्ट यू टर्न्ड फ्रॉम देयर, मतलब अब मेरे को ऐसा लगता है कि क्रिमिनल ऑफेंस मैं कर रहा हूं अगर मैं बिना कैलेंडर के अगर ऑफिस स्टार्ट करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ क्रिमिनल एंड आई एम डूइंग सम क्राइम, मतलब मैं इनजस्टिस कर रहा हूं अपने टाइम के साथ, पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो चंदन जी ने बोली कि अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, उसकी ना मुझे क्लैरिटी नहीं होती थी कभी कि अर्जेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या है। मतलब मैं ऑब्वियसली क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत डीप डाउन पैशन है और बहुत था शुरू से, तो मैं आगे फोर्स ही तो कर पाता था, बट आज मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वो ऐसा 4% है जो मुझे 96% रिजल्ट देगा, शायद वो जो चंदन आपने मुझे जो हैक दिया अर्जेंट इंपॉर्टेंट की, जो क्लैरिटी, अटमोस्ट क्लैरिटी, वो मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। और तीसरा चंदन भाई कि व्हाट आई पर्सनली फील कि हर चीज को मैं हमेशा ऐसे देखता हूं कि वो चीज मुझे अगर एक बार करनी पड़े तो मुझे बार बार ना करनी पड़े सेम चीज। यानी कि अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने रिन्यूएबल नॉन, तो ऐसे जो मतलब बार बार अब आप एक ही चीज को कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अब चंदन जी से मेरे को मिलना है, अब यही इंटरव्यू मान लीजिए अगर मेरे को कल सेम करना है तो मैं इसी पे पोस्ट कर सकता हूं, है ना। तो अब इस चीज के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर नैनो वीडियोस ने जो जिसको अब मैं एंटरप्रेन्योर्स को देता हूं, उसने मेरी लाइफ में बहुत 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 इंपैक्ट लेकर आया कि क्योंकि अब हमारी कंपनी के अंदर या जितने भी हंड्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को मैंने पिछले लास्ट 3 महीने में कोच किया है, उनकी लाइफ के अंदर भी ये इंपैक्ट आया कि एक बार अगर आपका कोई भी काम है, अगर आप उसकी एक वीडियो बना के रख लीजिए, ट्रेनिंग्स बनाकर रख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पूरी सेल्स ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, फाइनेंस के एसएपी मॉड्यूल्स हैं, हर एक चीज की अगर ट्रेनिंग्स बन जाए, आपके पास प्री सेट हो जाए, तो एज अ बिजनेस ओनर आप सोच के देखिए, क्या आपके पास कभी भी टाइम की कमी होगी? नेवर। आपके पास टाइम अबंडेंस में होगा। और ये जो लर्निंग्स, जैसे अब ये लर्निंग सेशंस हैं, फिर आप इन लर्निंग सेशंस को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, जिससे कि आपको ज्यादा फ्रीडम मिलेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। प्लस हर चीज जब डॉक्यूमेंटेड होगी ना आपकी वीडियो के फॉर्म में, तो that is something which will give you your business, your sales and marketing so much of leverage कि आप अपने कंपटीशन से हटके बिल्कुल अलग हो जाओगे। मतलब हमारे कॉम्पिटिटर आज 200 से 250 से लेकर 2000 से 5000 करोड़ तक के सिंटेक्स जैसे कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं चंदन भाई। बट बिलीव यू मी, वी पोजिशन आवर ब्रांड इकोस्ट एब्सोल्युटली डिफरेंट, जस्ट बिकॉज कि आज जो 150 से ज्यादा वीडियोस हैं जिनको 1 करोड़ लोगों ने देखा है, उन वीडियोस की वजह से हमारी पोजीशनिंग बिल्कुल अलग हुआ है ब्रांड की। तो और उस पोजीशनिंग की वजह से आज कंट्री के अंदर जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, टाटास, आईआईटी, गोदरेज, इन सब में, एचएमईएल, सब में अप्रूवल्स हमारे सिर्फ उन वीडियोस की वजह से होते चले गए, क्योंकि उनके लिए भी इजी हो गया, क्योंकि उनके
जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको, आर्किटेक्ट्स हैं, उनको अपना टाइम बार बार नहीं लगाना पड़ता हमें कॉल करके हमसे समझने में। तो Absolutely. ये 3 चीजें प्रिसाइजली अगर मैं लुक बैक करूं कि तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में इन 3 चीजों ने बहुत वैल्यू ऐड करी है, जो मैं टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट में आपसे शेयर करना चाहूंगा। बट मैं फिर बोलूंगा, नैनो वीडियो तो मेरी लाइफ में 5 साल से थी, Right. बट ये जो पहले 2 प्रिंसिपल्स है ना, ये मिसिंग थे। इससे मैं अपने व्यापार में जो करना चाहता था वो तो मुझे मिल गया, बट जो Hmm. मैं ये वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं ना, इसका क्रेडिट पूरा चंदन भाई कि ये 2 प्रिंसिपल्स को जाता है। क्योंकि ये अगर प्रिंसिपल शायद मेरी लाइफ में मुझे नहीं मिलते, तो प्रोबेबली मैं 100% जो सक्सेस बिजनेस के एंड से ले पा रहा हूं वो तो ले पाता, Hmm. बट क्या बिजनेस, क्या पैसा, क्या खाली यही एक लाइफ की एक चीज है क्या जो हमें फुलफिलमेंट के लिए चाहिए होती है? नहीं, Absolutely. है ना। जब हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, जब हम लोगों को सर्व करते हैं, जब, तो उसकी एक जो फीलिंग रात को आती है चंदन भाई, जब मैं ना रात को ग्रेटिट्यूड जर्नल, जैसे आज भी रात को भरूंगा, तो जब उसको रात को ना ये लिखते हैं ना कि आज 1000 लोगों ने इस वीडियो को देख के लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड, वो जो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलती है ना चंदन भाई, वो प्राइसलेस है। वो आई थिंक 1 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी ना एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, बट अगर आप 4 घंटे बाद पूछेंगे ना तो वो याद नहीं रहेगा। हाँ, ठीक है। बट ये जो अभी लोगों की लाइफ में अगर इंप्लीमेंट करके चंदन भाई, जो इनको पावर मिलने वाली जो आपने टूल्स दिए हैं, आपको क्या लगता है चंदन भाई, मतलब अगर वो इंप्लीमेंट कर ले तो उनकी लाइफ में कितनी फ्रीडम जनरेट होगी, और उस फ्रीडम से वो अपनी लाइफ में क्या क्रिएट कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? भाई देखो, मैं तो बड़ी सिंपल सी एक बात बोलता हूँ। जब मेरे जैसा सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना, वो अगर साल में 6 छुट्टियां ले सकता है, और मैंने कुछ अलग नहीं किया, जो मैंने आपसे शेयर किया मैं बस उसको प्रैक्टिस करता हूँ। आप और इसको 6 छुट्टियां भी 6 दिन वाली नहीं। हाँ हाँ, आप ये मत सोचना 15-15 छह दिन की छुट्टियां भी वो लेता हूँ। हाँ, 15-15 दिन की भी लेता हूँ। तो मैं आपसे यही वाह, कह रहा हूँ कि बहुत आसान है। पहली चीज मुश्किल नहीं है, केवल आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं, इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेने हैं। हाउ के हवे में नहीं पड़ना है। लोग हाउ में चले जाते हैं पहले ही कि कैसे होगा। आपको जो मैंने चीजें बताई हैं उसको सिंपल तरीके से आप इंस्टॉल करिए, उसके पूरे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और जो अंकुर ने कहा था कि लास्ट में मैंने अभी आपको जो कहा था, एक गिफ्ट आप लोगों के लिए है, और वो गिफ्ट है अंकुर, जो मेरी बुक है, Amazon #1 बेस्ट सेलर, हाउ टू मैन्युफैक्चर टाइम, दैट आई एम गिविंग यू 3 चैप्टर्स कंप्लीटली फ्री। आप मेरी वाह, जो वेबसाइट है www.chandan.goyal.com, chandan.goyal पूरा वर्ड है, CHANDANGOYAL.com, आप वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आइडिएशन के ऊपर हमने बात करी और जो डिस्ट्रैक्शन के ऊपर बात करी, आपको उसके ऊपर और मटेरियल मिलेगा जिससे आप उसको इंप्लीमेंट करने में आपको आसानी। And I'm बहुत, really thankful to everyone here, and especially Ankur, for hosting me and sharing whatever I had to with your viewers. thank you so much, guys. It was an honor, and it was a privilege to have you, Chandan, to get these insights, what you shared with all of us. I'm truly honored and privileged to have you guys. And one more announcement for each one of you, all those of you who have missed the last webinar on on how to generate sales by just investing 15 minutes a day. There's a good news for you. I'm going to have one more webinar for you on this coming 6th, that is Saturday, at 6:45 p.m. to 8:15 p.m. All those of you who missed it, or the loved ones whom you want to help, it's certainly getting organized again, only and only for you. Thank Wow. you so much once again, Chandan Bhai. Thank you so Wish you much. all the success of the world, and thank you all the audience for watching this live. It means a lot to us. We would love to serve you again the next week with someone else on board. Thank you so much. Bye, Chandan. Take care. God Bye, bless. bye, Ankur. Bye.